Okay, what are the objective, importance, and applications of this subject? What is the benefit to study this subject? Right, lifespan psychology. Uh, One thing, then then what are the things we have to cover? Each block, sir, we have a 4 class, right? Each course. So we have a block 1, block 2, block 3, block 4, right? So each block we need to study, and block 1 is talking about prenatal, infancy, and early childhood, and block 2 is talking about development during early school years, and block 3 is development during adolescent, and block 4 is adulthood and aging. ठीक है, so इसी तरह 4 blocks हैं, और each block has 4 units, right? Yes, sir. So I just want to share my screen so that we can discuss. Okay. Now this is unit 1. You can see the screen. Yes, sir. You can see the screen. This is uh, MPC 2, lifespan psychology. Here we are talking about unit 1, concept of development, growth and development, lifespan perspective, methods of studying development, and characteristic of the development, right? Similarly, unit 2 is talking about prenatal development, right? Genetic and environmental influence, hazardous development. Then unit 3 is talking about developmental during infancy, and physical, psychosocial, and cognitive and linguistic development. Then now fourth unit is early childhood and physical, psychosocial, cognitive and linguistic. तो आपको अभी क्या है कि लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में हम हर एक स्टेज, ठीक है, सो देयर विल बी ए 4-5 स्टेज ऑफ एंटर ह्यूमन बीइंग, राइट? So from starting from conceptions, right, till death, right? So it is all about we are in old age and death. Until death, the lifespan psychology is there, and each stage the individual behavior uh, uh, s- changing, right? In terms of cognitive, in terms of emotional, in terms of psychosocial development, right? In terms of physical development, in terms of uh, uh, है ना? Then each stage have there is a problem and challenges, right? हर स्टेज में अपना एक प्रॉब्लम से challenges हैं, और each स्टेज हिसाब से आते हैं, और हर स्टेज में we need to study. But now question is, why do we study this subject? हम क्यों पढ़ें इस सब्जेक्ट को? इसीलिए हमें पढ़ना है एज ए साइकोलॉजिस्ट, राइट? हम अगर हर एक लेवल में, चाहे छोटा बच्चा हो, कॉन्सेप्शन हो, still when the child is start his life, right, and till each and every phases of life, right, there are changes, there are problems, right, there are opportunity to learn. तो उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे एज ए साइकोलॉजिस्ट. वी कैन गाइड, वी कैन काउंसल, वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ए बिगर पिक्चर्स, राइट? सो उसको हमें हेल्प करने में आसान होगा. यस कनिका, यू रेज योर हैंड, पूछिए भाई. यस, हाँ जी, कनिका कक्कड़. Okay, so let's start the topic, right? Then, if you have a questions, then we'll end. Right, I'll tell you only 45 minutes discuss about the course. What are the outline? क्योंकि we have only 4 session, right?
and we have the 4 blocks, right? So each block has a 4 unit. I think each course need at least 30 to 40 hours, right, to complete. But there are very less time, so I cannot go into detail. So which you need to study in advance. ठीक है, this is a counseling class. Counseling का मतलब ये है you have to study each and everything before coming to the sessions. And if there is any doubt, ठीक है, any problems, any questions you can ask, we can handle the questions, we can discuss the questions so that we will get the answers. So इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, आप सब कृपया पढ़ के आइए हर सब्जेक्ट को, हर यूनिट को एडवांस में। उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं वो हमें आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। आप और मैं एक ब्रीफ आउटलाइन दे दूंगा कोर्स का, जो इस कोर्स में क्या कंटेंट है, क्या स्टडी है, क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, वो आपको हेल्प मिल जाएगा टू स्टडी, ठीक है। ओके सर, थैंक ओके सर। ठीक है। और रेफरेंस बुक, देयर आर मेनी रेफरेंस बुक्स आर देयर। मुझे लगता है पहले यही साइकोलॉजी की जो आपकी इग्नो स्टडी मटेरियल है उसको पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद रेफरेंसेस। अगर कोई है गूगल पे सर्च करोगे लाइफ स्पान साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, देयर आर एन नंबर ऑफ ई बुक्स आर अवेलेबल, राइट। तो आप उसको ढूंढ सकते हो। आज के टाइम पे कोई ई बुक का कंटेंट बहुत सारी जगह पे है, अवेलेबल है, और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया वीडियो लेक्चर जो फॉरेन ऑथर कोई रिकॉर्ड किया है, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अच्छे कंटेंट डेवलप किया है, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ। तो नॉलेज आज के टाइम पे सिर्फ किताब जो है, किताब में तो पढ़ना चाहिए, लेकिन किताब के अलावा भी आपको इजीली अवेलेबल है बहुत सारे कंटेंट, ठीक है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। Excuse me, sir. Now, ये someone has Anu Verma. Please remove your the scaring say. Okay. हाँ बताइए। Sir, yesterday I missed yesterday's class, so I see you. Somebody is recording the class. Can that person share the link or the video of yesterday's class? Yesterday हमने लिया नहीं है क्लास, ठीक है। yesterday की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। yesterday का कोई इमरजेंसी आ गया था तो आज कर रहे हैं हम लोग, और रिकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी भेजेगा, हम नहीं भेज सकते। यू। रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है। Okay. और But रिकॉर्डिंग somebody is recording कर me. सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रही है, लेकिन वो अपना भेजेंगे, ठीक है, टाइम पे। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, अभी आप डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। Thank you. यस, अभी जस्ट लिसन, ठीक है। मैं 45 मिनट्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी देता हूँ, और उसका क्या ओवरव्यू है, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेट सेशंस। वी हैव अ 1 आवर, so 40 minutes about the lectures, right? So where we can discuss the previous जो हमने पढ़ाया था उसका रिवीजन करेंगे। नेहा जो चीज़ें है आपको नया यूनिट का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग का मेन पर्पस है, सो दैट टाइम वी कैन डिस्कस ईच वन ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट। अभी क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं, जब मैं पूछूंगा क्वेश्चंस के लिए उसी टाइम आप क्वेश्चंस बताइएगा, और चार्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है कोई चीजें, क्योंकि पॉपअप होता है और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए डोंट डू दिस, राइट। सो जस्ट लिसन द ओवरव्यू, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। So that's all right. Now I'll proceed to the unit 1, right? Lifespan psychology पहले तो पढ़ना क्यों चाहिए? What is the purpose? What is the importance? What are the objective of to study this subject? ना लाइफ साइंस साइकोलॉजी आप पढ़ने से एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको ये हेल्प मिलेगा, चाहे आप क्लिनिकल में काम कर रहे हैं, काउंसलिंग में काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इन किसी भी फील्ड में आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एक जो क्लोजनेस होगा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, वो बहुत क्लैरिटी होगी, क्योंकि हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पे
हम हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ेंगे फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, ठीक है। तो इस ओल्ड एज में हर एक स्टेज में हर इंसान की अलग तरीके से थिंकिंग, परसेप्शंस, राइट, और कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी अलग होती है, पर्सनालिटी कीप इवॉल्विंग, राइट, इंटरेस्ट, तो चेंजेस होते रहते हैं, तो उनकी नीड एंड प्रेफरेंस, द चैलेंजेस आर डिफरेंट। तो ये हमें काउंसलिंग में, वेदर वी आर डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम और हमें जब काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ों से हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें एक आइडिया मिल जाएगा जो साइकोलॉजिस्ट का एक पर्सपेक्टिव है। इसीलिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कोर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ाया जाता है इग्नू में। तो इसीलिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आप देखोगे बहुत सारे चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं, एडल्ट की साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, है ना। तो उनकी जो इश्यूज है, चाहे वो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, तो वो चीज़ों को आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा इस एज में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, या क्या चैलेंजेस रहती है, या क्या उनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, तो आप उसको कैटर कर सकते हो, उसको हेल्प कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्टडिंग। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, मेथड्स ऑफ स्टडिंग दिस डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इस जो यूनिट के अंदर, ये यूनिट 1 है, ब्लॉक 1 की यूनिट 1 है, जहां एक ओवरव्यू दिया गया है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी के, लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर, राइट। तो इसके अंदर इसने डेवलपमेंट की बात करी। डेवलपमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे देख सकते हो। सो डेवलपमेंट इज बेसिकली ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द लाइफ स्पान, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ describe the growth of human being throughout the lifespan, right, and conception to death, ठीक है। कंसेप्शन जहां से बच्चे जहां इवॉल्व हो रही है, जहां बच्चों की बिगिनिंग शुरू हो रहा है, जहां शुरू हो रही है, एंड डेथ तक इट इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट स्टेज, राइट। And the development pattern are changing over a period of time, right, whether it is a biological, whether it is a physical, right, all aspect of growth changes. It may be so cognitive process, social process, right. So all the prospects are developing throughout the life, and human development seeks to understand and explain why people are changing throughout life, ठीक है। तो हर एक स्टेज में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, एंड उस हिसाब से वो चेंजेस होते हैं, वेदर इट इज अ साइकोमोटर स्किल्स, वेदर इट इज ए साइको physiological things, right? So these kind of changes also developed in the over a period of time. So all the kind of development means maybe understanding, moral, problem solving, language and acquisition, social personality, or emotional development, self concept. Many things are there. So development and growth, basically, growth is defined the increasing the size, right? So growth and development in goes hand in hand. That is, we are studying about growth and development of the each individual. So growth basically refers to development of children from birth to adolescent, right? From newborn to teenager, right? So this kind of growth we are talking about. Growth is constantly changing of the child and shape and size. So growth में जब हम बात करते हैं, तो फिजिकल ग्रोथ, हमें साइको सोशल कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशियो इमोशनल, और सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी ग्रोथ, सो दोज एस्पेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो फिजिकल ग्रोथ, जैसे आप कहोगे कि बॉडी की हाइट वेट कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन की। देन साइको सोशल एंड कॉग्निटिव, जहाँ पे कॉग्निटिव जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे डेवलप हो रही है। साइको सोशल, जैसे आपकी बहुत सारे मेंटल जो डेवलपमेंट है साइको सोशल में, जैसे आप कहोगे कि जे हर एक स्टेजेस में जो चाइल्ड लर्न कर रहा है, जैसे हमारे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो एरिक्सन हैज गिवन
many psychosocial, ठीक है, and development. Cognitive is basically intelligence हो गया, analytical ability, thinking, problem solving, right? So all kind of aspects, cognitive thinking ability, right? Abstract thinking. तो इसी तरह emotional. तो ये सारे development we are studying in each and every stage of lifespan development, right? And yes, lifespan's perspective we are talking about. So we need to understand lifespans, right? In different aspect, lifespan development, which is study about biological aspect. Biological factors also influence the development process. Psychological factor also influence, right? जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जैसे आप कहते हो पेरेंटल डेवलपमेंट, राइट? जो पेरेंट्स की हाइट हो की भी हाइट उतना ही है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, राइट? तो बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल मतलब इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, सेल्फ एस्टीम, right? Psychological force and socio-cultural development also there, like socio-cultural means interpersonal and societal and cultural ethical factors which influence the child development, right? The life cycle force, right? The reflex is different in how the same events affect the people in different ages. Each individual is product of unique combination of these forces, right? So life cycle, right? Each life cycle has a different stages which need to develop, and each individual is a unique product, unique the characteristic होती है हर development stage में. नाउ इशू इन लाइफस्टाइल डेवलपमेंट, बेसिकली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मीन्स इसका मतलब है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, तो उसके एक एज, स्पेसिफिक एज पीरियड नहीं होता है, ठीक है. वी कैन नॉट मार्क ऑल दिस थिंग. तो इट इज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल accumulations of behavior, skills, knowledge, right? तो ये चीज होती है, बट कंटिन्यूअस है. एज ए साइकोलॉजिस्ट से इट इज ए कंटिन्यूअस. बट डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे कहीं एक स्टेज में कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया, सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी. तो हम दो तरह की चीजों को नजर देखेंगे, वेदर इज ए कंटिन्यूटी, वेदर इज ए डिसकंटिन्यूटी, ठीक है. देन when there is a discontinuity, then gradually there are some psychological or physiological or other issues are aligned with that, ठीक है. तो ये चीजें नजर आएगा. दूसरा is stability versus change, right? So another issue is importance is basically stability. जो भी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम बात कर ले, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज. few things are few characteristic in जो बिहेवियर में बहुत स्टेबल रहता है throughout the person's life. Like for example shyness, ठीक है. कोई इंडिविजुअल शाय है, तो थ्रूआउट लाइफ उसका स्टेबल रहता है. और बहुत सारी चीजें हैं कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग एंड चेंज, ठीक है. देन नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है. बहुत सारे जो चेंजेस हैं डेवलपमेंटल है. नेचर मतलब एनवायरमेंट, ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर वर्सेस हेरिडिटी फैक्टर्स, वो बहुत मेजर प्ले. वी कैन नॉट से बोथ द फैक्टर आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट वी कैन नॉट से कौन सा कितना इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा कितना चेंजेस होगा, वी कैन नॉट से, ठीक है. So this is important. Now here is major things we are to lifespan psychology, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, राइट? चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट. जो चाइल्ड है वो बर्थ टू, यू कैन सी हियर, बर्थ, चाइल्डहुड इज ए बर्थ टू 20, राइट? बर्थ एंड एडोलेसेंट, बर्थ टू 20 एज. एडोलेसेंट मीन्स 20 एज तक ले रहा है. Then early childhood 17, adulthood, early adulthood 17 to 40, middle adulthood is 40 to 65, and late adulthood 65 and others, right? तो खास करके हम लोग जो लाइफ एंड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, 0 to बर्थ एक तो है, देन बर्थ टू 2 years, इसको कहते हैं इन्फेंसी, ठीक है. एंड 2 to 6 years इज अर्ली चाइल्डहुड. इस तरह की बहुत सारे ऐसे
हमारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, which we need to study. Okay. Now, then dominance of human development. Dominance of human development is तो मेजरली जो डोमिनेंस इंक्लूड हम जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इस डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में क्या है ना, डेवलपमेंट ये जो सब्जेक्ट है, हम इसको लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप एक दिन की स्टडी करके किसी के बारे में राय नहीं निकाल सकते। इससे कंटिन्यूअस लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जो इस एज में पर्टिकुलरली इस तरह की बिहेवियर और रिफ्लेक्स होते हैं या ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसको हमें देखना है। देन डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता है, इट इज साइमल्टेनियसली बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आल्सो देयर, ठीक है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, बेसिकली डायमेंशनल्स हो गया, मल्टी डायरेक्शनल्स इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट the maintains no single no normal path or development must be should be taken. जब हम कोई स्टडी करते हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, हम बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, स्टडी के अंदर, तो इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल। देन डेवलपमेंट इज प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मीन्स द प्लास्टिसिटी रेफर्स टू विद इन द पर्सन्स वेरिएबिलिटी, ठीक है, इज पॉसिबल ए पर्टिकुलर बिहेवियर और डेवलपमेंट। एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हो सकता है, हम एक ही बिहेवियर में चेंजेस नहीं देखते, तो इसीलिए ये जो है कहीं चेंजेस भी होता है और कहीं स्टेबल भी होती है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट हमेशा कॉन्टेक्सचुअल है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में हम उस टाइम उस सिचुएशंस के हिसाब से एनालिसिस करके देखते हैं, तो कॉन्टेक्सचुअल है, मल्टी डिसिप्लिनरी। सो ये जो साइकोलॉजी है, इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, लाइक वी स्टडी the different aspects of human aspect, like anthropology we can study, we computer science, neuroscience, medicines, linguistics, sociology, right? So these are the subjects we are including in the development stages, right? Then development involves growth, maintenance and regulations. The mastery of life involves conflict and competitions among three goals of human development: growth, maintenance and regulations, right? So development again embed in history, right? So development is historically situated, is always influenced by historical conditions, right? तो कभी-कभी हमारी जो हिस्ट्री है और historical aspects also influence. Then normative age and grade influence, right? Biological and environmental influence that are similar for the individual in a particular group, like childhood poverty, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज में ये डेवलपमेंट आता है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरह देयर आर मेनी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच यू कैन इंक्लूड इन द स्टडी। then there are facts of development. Here we can say the early foundation is critical. जैसे बच्चे को जो है ना अर्ली, जैसे साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो मतलब बताए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जैसे सिगमंड फ्रॉइड का कि अर्ली चाइल्डहुड बहुत क्रूशियल है, जो भी डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड जो है फाउंडेशंस हैं वहीं तैयार होता है, ठीक है। तो उसकी जो हैबिट्स हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, वो सारे आपको वहीं सिखाना है, जैसे 2 से 6 साल हो गया और 6 से आप 8, 9, 10 साल तक, ठीक है, 12 साल मैक्सिमम, 12 ईयर्स, जो भी फाउंडेशन ले डाउन करोगे वही आगे चल के उसकी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट्स उसी तरह डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसी तरह आपको देखना है फाउंडेशन, अर्ली फाउंडेशन इज क्रूशियल। देन रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन डेवलपमेंट, तो इसको भी देखना है। एंड डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टिव पैटर्न्स, राइट? It follows
it is definite and predictable, right? We can predict also, like physical and motor and intellectual and speech development also there. तो इसको देखते हैं, Excuse me, sir. all individuals are different. Yes. Sir, I just want to know कि इग्नू के जो हमारे नोट्स हैं या जो हमें हार्ड कॉपी दी गई है, they are sufficient or not? हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, इसलिए दिया गया है। ओके, मतलब हमें अदर रेफरेंस बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर? पहले ये पढ़ लो, इसके बाद अगर आपके पास समय है तो अदर रेफरेंस पढ़ लीजिए। पहले अपना जितना है उतना ही तो पढ़ ले पहले। यस सर। मॉर्गन एंड किंग अच्छा है रेफरेंस बुक। ओके, Sir, if you're sharing your screen, it's not visible. Screen share बंद हो गया. If you are. अभी तो आ रहा है, नहीं sir, screen नहीं दिख रहा sir. बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. सब फोन पे हैं तो कोई दिक्कत आएगी. हाँ, स्क्रीन विजिबल है। यस Yes, sir, it is visible. Sir, तो अभी you थोड़ा are- सा पहले लेट मी फिनिश, डोंट आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, ठीक है? Okay. क्वेश्चंस बाद में लेंगे, ठीक है? अगर साउंड में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता सकते हो। No, sir, no. तो all individuals are different, so therefore we need to study, क्योंकि no like two people are not behave in same way, same reaction, so इसीलिए हमें हर एक इंडिविजुअल की यूनिक है, क्योंकि उनकी कल्चर डिफरेंट है, उनकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर डिफरेंट, राइट, एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आर डिफरेंट, तो इसलिए हमें उसको भी ध्यान देना है, ठीक है? ईच फेज डेवलपमेंट हैज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, हर डेवलपमेंट में अलग चीज होगा, हर डेवलपमेंट में हाजरस और अलग तरीके से होंगे, तो वो चीजों को हमें देखना है, ठीक है? तो इसी तरह कल्चर वाइज ऑल्सो द चेंजेस ऑल्सो देयर है ना, एक्सपेक्टेशन, सोशल एक्सपेक्टेशन, ट्रेडिशनल बिलीफ, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन जो डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इनको भी हमें देना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च मेथड्स इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। जो हमें रिसर्च करना है, तो ये रिसर्च में हमें कैसे रिसर्च करनी है ना, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो नहीं सकता। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे पीरियड पे हमें डेटा को कैटर करना है, रेस्पॉन्स को लेना है और उसको एनालिसिस करना है। बट लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है, हमें हर एक इंटरवल में, हर एक स्टेजेस में उसका बिहेवियर को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप। तो लॉन्गिट्यूडिनल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके 2 साल, 3 साल, 4 साल रेगुलर इंटरवल में उसकी जो बिहेवियर्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों को स्टडी करनी है। तो ये रिसर्च मेथड है। देन इसीलिए क्रॉस सेक्शनल मेथड एक पर्टिकुलर एज जो आ जाती है उसमें भी कर सकते हैं, बट द रेलेवेंस जो है यहाँ पे लाइफ स्पैन स्टडी में थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है? Then sequential methods, like sequential means combination of both, ठीक है, longitudinal क्रॉस, तो इसको भी कर सकते हैं। Then time lag methods, right? This method is studying development in different age group in different years. So हम उसको भी एक टाइम पीरियड के हिसाब से इसका भी स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है? देन ऑब्स्टैकल्स इन स्टडीइंग लाइफ एंड साइकोलॉजी। जो ऑब्स्टैकल्स क्या होती है ना, सैंपल नहीं मिलते, ठीक है? एक सैंपल को बहुत साल तक स्टडी करना है एक एज ग्रुप में, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल, ठीक है? देन एस्टैब्लिश रैपो विथ सब्जेक्ट एज अनदर चैलेंज, राइट? समटाइम लोग मना कर देते हैं, इतना डिफिकल्ट है, क्यों स्टडी कर रहे हो? तो लोग सबकी निगाहों में भी देखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन तो ये नहीं कर रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है रैपो एस्टैब्लिश करना। देन अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, कोई एक अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी है नहीं, हर कोई अपने मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, डिफरेंट टाइम एंड रिक्वायरमेंट, तो इसीलिए क्रॉस सेक्शनल तो बहुत डिफिकल्ट है टू जनरलाइज द डेटा।
बट हाँ लंगीचुडिनल कोई कर सकता है, इतना पेशेंस है, so that is it यार. Then accuracy of the data, sometimes data are हम फीड खुद ही फीड कर देते हैं, या कोई हमने कहा कि तुम फिट कर दो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, तो डेटा एक्यूरेसी इज ए चैलेंज, एथिकल एस्पेक्ट्स आल्सो चैलेंज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1. नाउ वी कैन टेक few questions here, right? Yeah, if you have any questions you can ask here. So we'll take a 1-2 minute pause here, then we'll proceed the next. Sir, actually, while preparing the assignments, it is mentioned there that the language should not be the same, but it is like being difficult. How can we prepare the assignments? And, like this is very new subject. So हाँ, तो असाइनमेंट आप पढ़िए, पढ़ के अपने लैंग्वेज में लिखिए, रीस्ट्रक्चरिंग करिए सेंटेंस को, हो जाएगा. Sir, any important topics from this chapter from exam point of view? इस यूनिट के अंदर यस इम्पोर्टेंस ये है, आपको एक तो रिसर्च मेथड्स हैं, ठीक है, और की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ये भी आ सकता है, और दूसरा मैंने बताया था मेथड्स हो गया, ठीक है, एंड बस यही दो है. Okay, sir. एनीथिंग एल्स? अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाओगे या फिर अभी इसी को ही? अभी यूनिट 2 पढ़ेंगे. अभी यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. सर अभी आपने बताया ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, एक बार आप प्लीज एक बार दोबारा बता देंगे. एक आपने रिसर्च मेथड बताया, एक रिसर्च मेथड है, एक तो जी. ये वाला है Characteristics of lifespan बोला था सर आपने. अच्छा. हाँ यस, ये दोनों इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच सर. सर एक बार लाइफ टाइम लैग मेथड बता दो. क्या? टाइम लैग मेथड बता दो एक बार. टाइम लैग मेथड्स इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसको कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है ना. तो दिस मेथड इज स्टडिंग डेवलपमेंट डिफरेंट एज ग्रुप इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, to determine the historical events, facts on the behavior, and this method is rarely used in developmental psychology because it is take long time and large number of surgery is required to change. Basically इसको कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है ना. एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे बिहेवियर चेंज हो रही है, कैसे बढ़ रहा है, वो सारी चीजें हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो आप अगर स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा टाइम सीरीज एनालिसिस, so this method is used. Yeah. Okay. Excuse me, sir. हाँ जी बताइए. So can you explain cross-sectional method in short? क्रॉस सेक्शनल मेथड्स मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, मतलब एट ए टाइम सैंपल ले लिया, ठीक है, एट ए टाइम रेस्पॉन्स ले लिया और उसी की बेस पे एनालिसिस करके रिजल्ट निकाले, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस. Okay, thank you, sir. Sir, one thing I wanted to ask, like usually in the question paper, it is mentioned that you have to write the answers in approximately, let us say 450 words or 100 words, So in case, means we exceed, can we exceed or not, or marks are deducted for exceeding also if we exceed नॉट एक्सीडिंग, तो उससे कोई मार्क्स पास नहीं करता है, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली है, जो अगर आपने एक्सीड कर लिया, ठीक है, तो आपको बाकी क्वेश्चंस का देखना है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलता है, ठीक है, आपको उसी आंसर शीट में लिखना है, तो आपको उसी हिसाब से प्लान करना है. तो एक्स्ट्रा लिखने से कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आप दूसरे सब्जेक्ट का भी, दूसरे क्वेश्चंस का भी देखना है, ठीक है. ओके सर. एंड जो मिनिमम लिखा है उतना तो करना ही है, अगर 450 लिखा है तो उतना करें, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड 25-30 वर्ड्स हियर एंड देयर, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट 450 है तो 400-430 तक तो करना ही है. सर लेफ्ट हो गए.
हाँ बताइए। मिनिमम जितना है उतना तो मिनिमम करना ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एंड नो एक्स्ट्रा शीट्स यू आर सेइंग एट No. ऑल? एग्जाम पे नहीं मिलता है। ओके सर। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? सर अर्ली चाइल्डहुड के हजार्ड्स बता देते एक बार थोड़ा ब्रीफली। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड में जो हजार्ड्स दे रखे हैं उस वाले यूनिट में अभी 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 रिकल हमने और डिस्कस नहीं किया, उसको करेंगे। अभी मैं सेकंड यूनिट के अंदर है। सर ये फर्स्ट यूनिट में ही है अर्ली चाइल्डहुड, फर्स्ट ब्लॉक का यूनिट 4 सर। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट ब्लॉक का यूनिट 4। यूनिट 4 अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ाएंगे, अभी बताते हैं उसमें क्या है। ठीक है, अभी यूनिट 1 के अंदर आपको कोई सवाल है तो पूछिए। तो सर यूनिट 1 में आपने ये इन्फेंसी तक करा है ना कवर? क्या? सर यूनिट ये ब्लॉक 1 में इन्फेंसी तक कवर किया है अभी तक? नहीं, इन्फेंसी नहीं कवर, अभी यूनिट 1 में ब्लॉक 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कल का सिलेबस हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो खाली का चीज है जो पढ़ाना था उसको बता रहे हैं। Any other? Now proceed to the second unit, right? अब यूनिट 2 के अंदर आपका आ गया यूनिट 2, जहाँ है प्री नेटल डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब है जो चाइल्ड, हेलो म्यूट योर माइक। प्री नेटल डेवलपमेंट इज बेसिकली 0 to जो कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे थोड़ा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो साइंस पढ़ा है उसके लिए तो ये इजी है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको बार बार पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन आता है एग्जाम पे जरूर से, राइट? यस प्लीज म्यूट योर माइक। कौन सा टॉपिक बताएं सर, आप रिपीट करेंगे? आपकी आवाज कट रही है। हेलो, चैप्टर 2 में अभी जो आपने बोला सर। प्री नेटल डेवलपमेंट यूनिट 2 ब्लॉक 1 यूनिट 2 प्री नेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, कैसे बिगिनिंग शुरू होता है लाइफ और टिल बर्थ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, जहाँ पे कैसे बच्चों की लाइफ शुरू होती है। प्लीज म्यूट योर माइक, otherwise I need to remove। जो पूछा जाए क्वेश्चन तभी ओपन करिए माइक। ओके, ठीक है। सो प्री नेटल डेवलपमेंट, आई नीड टू जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो, सभी को डिस्टर्ब हो रहा है। सर एक काम कर सकते हो, आप सबको म्यूट कर सकते हो, म्यूट ऑल। नहीं, म्यूट नहीं, रिमूव कर दूंगा मैं क्लास। ठीक है, सो प्री नेटल डेवलपमेंट, ओके। सो प्री नेटल जो डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम साइकोलॉजी की, ये मैंने कहा था बिगिनिंग ऑफ लाइफ, राइट? सो प्री नेटल डेवलपमेंट बेसिकली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने कहा, कैसे बच्चा डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्री नेटल डेवलपमेंट इज बेसिकली प्रोसेस विच इज एम्ब्रियो और फिटस। ठीक है, तो इससे जो है चाइल्ड कैसे फर्टिलाइज हो रही है एंड टिल बर्थ, राइट? तो ये प्रोसेस है इसके अंदर बिगिनिंग ऑफ द लाइफ,
जो किस तरह की लाइफ शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल हाईलाइट, एग्स लिखो। द न्यू एज बिगिंस द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल सेक्स Yes, sir. क्रोमोसोम एंड फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। तो ये दोनों की जो है, द डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल बिगिंस व्हेन ए स्पर्म सेल एंड फ्रॉम फीमेल penetrate the wall of ovum or egg from the mother, right? तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो these are the how the like sex cells are developed in the reproductive organs, right? So इसी के थ्रू जो क्या होता है ना, ये biological, the child is heritage mother and father combination of 23 pairs of chromosomes, ठीक है। प्लीज म्यूट योर माइक, नीलम। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22, ठीक है, इक्वली मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूट, बट 23rd पेयर जो है हाँ जी सर। नहीं मिल सकते क्रोमोसोम डिफरेंट, डिफर्स फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल। सो जो क्रोमोसोम मिलते हैं ये मेल चाइल्ड 11 बन के मिलते हैं सर। ठीक है, तो एक जो राइट, जो 23 हो गया, इसमें आप कह सकते हो 23rd पेयर, राइट, मेल एंड फीमेल, जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम जो मिलता है तब जाके मेल चाइल्ड, और एक्स वाई जब होता है फीमेल चाइल्ड। तो ये पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो पूरी डिटेल्स, राइट, ईच डेवलपमेंटल और स्टेजेस। देन ईच चिल्ड्रेन अंडर कमिंग इनटू द कल्चरल प्रेशर, जो उसी टाइम ही अब ये क्रोमोसोम मिलने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स उसी हिसाब से जो वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक्स एंड वाई सेक्स डिटर्मिनेंट, जो सेक्स जैसे डिटर्मिनेंट होते हैं वेदर इट इज अ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसी हिसाब से उनकी बिहेवियर ऑल्सो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बिहेवियरल ऑल्सो चेंज। तो आपने देखा होगा मेल एंड फीमेल सेल यूनाइटेड एंड नथिंग can be done to change in sex the newly formed individual। तो ये लाइफ लॉन्ग से डेवलपमेंट में उसी हिसाब से इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, एवरी चिल्ड्रन कम अंडर इंक्रीजिंग द कल्चरल प्रेशर। सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, कल्चरल प्रेशर्स भी उसी टाइम, इन द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑल्सो फ्रॉम बर्थ, जब चाइल्ड मदर की ऊंब में है उस टाइम पे भी बहुत सारे हमारी कल्चरल प्रेशर्स होती है, पेरेंट्स है, टीचर्स है। तो उस वजह से जो बहुत सारे बिहेवियर, जैसे आपने सुना होगा अभिमन्यु, अभिमन्यु जब माँ के पेट में था तो चक्रव्यूह के बारे में उसने पता कर लिया था। इसीलिए बच्चे जब अंदर है माँ के पेट में, तब भी वो बाहर की जो प्रेशर है, सोशियो कल्चरल रिचुअल्स है, उससे भी वो लर्न करना शुरू कर देता है। तो ये चीज है, लर्निंग जो है, एक्सपीरियंस डिटरमाइन द इंडिविजुअल सेक्स, बॉयज कैसे लर्न करेगा सेक्स, गर्ल्स चाइल्ड कैसे प्ले करेंगे। तो ये सारे टिपिकली चीजें वहीं से आपकी सेक्स डिटरमिनेंट के बाद डेवलप हो जाती है। देन एटीट्यूड्स ऑफ द पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर इम्पोर्टेंट इन द इंडिविजुअल, राइट, इन फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी। खास करके जो पर्सनालिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, इसकी जो इम्पोर्टेंट है, तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी हाथ रहती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे कल्चर्स में रिचुअल्स होती हैं। ठीक है, तो उस रिचुअल्स की वजह से उनकी बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप मैचुरेशंस
है ना, ovulations, fertilization, these are the terms are given. So each stage धीरे धीरे कैसे वो डेवलपमेंट हो रही है। तो मेनली हर स्टेज में एक आपको ऐसे मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंट। तो ये ओवर आउटलाइन ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंट जहाँ आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, और ये एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते हैं क्या की कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट पीरियड है। यहाँ पे देखो 270 टू 280 डेज, 9 जिसको हम 9 मंथ्स कहते हैं प्रेगनेंसी का, तो ये इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल इन लाइफ स्पान। देन हेरिडिटी फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, इसमें इस टाइम पे हेरिडिटी फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है एंड फाउंडेशंस ऑफ द लेटेस्ट स्टेज। ठीक है, तो हेरिडिटी मान लो फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि यहीं पे हमें ध्यान रखना है बच्चों को कैसे ट्रेन करना है जब से कंसेप्शन हो गई। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चलते, राइट। देन फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ द मदर्स, राइट, व्हिच फोस्टर a heredity potential sometime फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि बहुत सारे जैसे रूरल एरिया में बच्चों को मान लो कोई स्लम में बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है या स्ट्रेस है, मम्मी को काम करना पड़ रहा है उसी स्ट्रेस सिचुएशन, तो बहुत बच्चों के ऊपर में भी और डेवलपमेंटल चेंजेस होती है। ठीक है, देन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द चाइल्ड जो सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, जो हम जेंडर की बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से वो उनका बिहेवियर पर्सनालिटी ऑल्सो चेंज। ठीक है, then other things are there, you can go through it during prenatal periods, right. The entire lifespan, right, the prenatal period proportionately greater growth, इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एनी अदर टाइम थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन, राइट। तो ये चीजें भी देखना है। 9 मंथ्स हम कह रहे हैं, तो ये मेजर कुछ माइलस्टोन की फीचर्स हैं डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर। नाउ हियर इज द रियल थिंग, यू हैव टू मिनट्स बाय मिनट्स कैसे बच्चे डेवलप हो रहा है माँ की पेट में, तो वो चीजें हैं। देखो पीरियड ऑफ जाइगट्स, जहाँ फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ 2 वीक्स, तो पीरियड ऑफ जाइगट्स, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जहाँ एंड ऑफ सेकेंड वीक एंड द लूनर सेकेंड लूनर मंथ। ठीक है, तो हर पीरियड यहाँ पे बात करी गई। देन पीरियड ऑफ फिटस जहाँ पे एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड लूनर मंथ टू बर्थ, तो 3 पीरियड है, पीरियड ऑफ फिटस, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ जाइगट। तो ये जो पीरियड्स हैं जहाँ पे बच्चों की कितने इंच हाइट, वेट, है ना, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीजें लिखा गया है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, राइट। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेना इस चीजों को। देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, इन द टाइम ऑफ टिल बर्थ, राइट, ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि अगर मदर को कोई डिजीज है तो वो भी एक प्रॉब्लम्स है, बच्चों को भी हो सकता है, तो ये एक देखना है। देन ड्रग्स एंड केमिकल, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत women अगर taking alcohol, consuming chemicals, so that also impact to the child। ठीक है, उससे बच्चों की मेंटल रिटार्डेशन हो सकते हैं। ठीक है, प्री मेच्योरिटी बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट रेट हो सकता है। ठीक है, देन रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता है, जो बहुत सारे हम स्कैन कराते हैं या कुछ करते हैं, तो ये लेजर्स है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन एवर्शंस, फ्रीक्वेंट एवर्शंस अगर होता है तो भी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आगे चल के बच्चों को दिक्कत होता है। ठीक है, हेलो, माय वॉइस इज कमिंग? Yes, sir. Yes, sir, it is clear. Yes, sir, it's coming, Yes, but sir. it's echoing, sir. It's echoing. Yes, sir, it is coming. Now mute your mics, just one person can respond। नीलम प्लीज म्यूट योर माइक, आपकी वॉइस से इको आ रही है बहुत। ठीक है,
then other fact, please. अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, रुकिए आप, वेट करिए, होल्ड, ठीक है। सो एज ऑफ द मदर, राइट, अगर 35 से ऊपर हो जाता है तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन चेक, राइट। देन ऑल्सो न्यूट्रिशन एंड डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी है। अगर डाइट कम हुआ, ज़्यादा हुआ है ना, स्ट्रेस इन मदर, ठीक है, स्ट्रेस इन मदर्स, ठीक है, मदर को अगर स्ट्रेस है। देन RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी एक ब्लड लेवल्स होती है, ठीक है ना, RH फैक्टर इनहेरेंटली फाउंड इन blood vessel, 85% population, right? The problem arise when a male carries RH positive factor and female doesn't carry, ठीक है, negative. So the child has developed RH factors, ठीक है। If sibling blood come into the contact with the mother system manufacturing antibodies of word of foreign RH. तो एक RH फैक्टर जो होती है ब्लड शुगर में, अगर उसकी वजह से अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं होता है तो जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, है ना, हो सकता है। तो these are the major factors in the prenatal development, खास करके ये what are the environmental influence and this is a period, ये जो है period of prenatal development, जहाँ हम पीरियड ऑफ जाइगोट की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फिटस की, ठीक है। नाउ यूनिट 3, एनी डाउट? और चलो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, ये जो आपने RH फैक्टर का बताया, इज इट RH फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप और समथिंग एल्स? इट इज अ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओनली, ओके, थैंक यू। now let's move to the unit 3. Unit 3 is developmental during infancy. Now यहाँ पे पहला जो था हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ लिया, 0 to birth, ठीक है, 0 to birth, जिसको प्री नेटल डेवलपमेंट कहती है। नाउ यूनिट 3 जो आ गया आपका अलग है, जहाँ इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब बर्थ टू 2 years, ठीक है, बर्थ टू 2 years को इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, राइट। सो इट इज ए एज ऑफ birth to 2 years, the first stage of developmental stage, ठीक है, जहाँ 2 year old children, जहाँ पे eat, cry, bubble, play, kick, smile, है ना, इस तरह की चीजें। तो हाँ, Sir, are there any important questions from Unit 2? यूनिट 2 में ये दोनों चीजें तो बताया मैंने, ये है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, और दूसरा है पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, दूसरा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, Okay, sir. Thank you. ठीक है। देन इन्फेंसी पीरियड में आप देखोगे जहाँ एडजस्टमेंट, इनिशियली जो चाइल्ड टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ब्रीथिंग, सॉकिंग एंड स्वॉलिंग एंड एलिमिनेशन, तो एडजस्टमेंट कैसे करता है आके आके बाहर आके माँ की पेट से निकलने के बाद वomb से, तो देयर इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट, तो इसमें हम रखते हैं जो हॉस्पिटल में कम से कम, फिर बाहर लेके आते हैं। देन अम्बिलिकल कॉर्ड, मम्मी से जो ब्रीदिंग होती है, when the umbilical cord is cut, the infant must be begin to breathe on his own, ठीक है, तो ये चीजें हैं। देन sucking and swallowing, now infant must now to get nourishment by the sucking and swallowing instead of receiving through umbilical cord, पहले umbilical cord से मिल रहा था, अब उसको खुद करना है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस, तो वो चीज है। देन एलिमिनेशन, बेसिकली द चाइल्ड एलिमिनेट, जो उसकी जो एलिमिनेट थ्रू पहले अम्बिलिकल कॉर्ड से होता था, नाउ ही स्टार्ट्स टू लर्न आफ्टर बर्थ हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू बिगिन,
ठीक, तो ये एडजस्टमेंट खास करके आफ्टर बर्थ इमीडिएटली होता है। आप किसी ने पूछा था हजार्डस ड्यूरिंग द इन्फेंसी, हजार्डस क्या है ना, ये हजार्डस है, फिजिकल हजार्डस एंड साइकोलॉजिकल। तो फिजिकल हजार्डस में क्या है ना, कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, कोई बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, ये हजार्डस रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस में इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की, हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम कभी सिजेरियन करते हैं या बच्चों की, तो कॉम्प्लिकेशंस रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिसकी वजह से इंजर्ड हो सकता है बच्चों की, तो इन ब्रेन में या कहीं पे भी किसी भी पार्ट में, तो दैट इज ऑल्सो चैलेंज फिजिकल, जिसमें अर्ली, उसके बाद लेटर स्टेज में वो रिफ्लेक्ट हो सकता है उसकी बिहेवियर में। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है complication at the time of birth. Then yes, multiple birth, like multiple birth is basically the children of multiple birth are usually smaller and weaker, right? It's a result of prenatal birth, which inhibits the fetal movement, and these infants tends to be born premature, which is adds to their adjustment problem. Right. So multiple birth is basically जैसे हमने देखा है कि एट ए टाइम अगर दो बेबी, ठीक है, टू इंच खास करके, तो मल्टीपल बर्थ की वजह से तो समटाइम्स जो मदर के केस में वो स्मॉलर और वीकर हो जाती है देन द रिजल्ट इन प्रीलेटर पीरियड, व्हिच इज मे बी कॉज ए प्रॉब्लम, राइट। देन पोस्ट मैच्योरिटी, कभी कभी पहले से बच्चे ज़्यादा पोस्ट मैच्योरिटी हो जाए, इफ द साइज फेटस इज लार्जर देन एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट। So prematurity, post-maturity also important, right, in the time of birth. So these are the physical hazards. And similarly, psychological hazards also there. जैसे कि हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स के नाम पे बहुत सारे जो वुमेन हैं उनको टर्चर करते रहते हैं, तो उसको जैसे ट्रेडिशनल बिलीव है तो उनको बहुत पूजा करना, ये करना, वो करना, तो उसकी वजह से कभी कभी जो बिलीव सिस्टम है उसकी वजह से द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑल्सो इम्पैक्ट, राइट। तो देर आर मेनी ट्रेडिशनल बिलीव एसोसिएट विद द बर्थ, दीज बिलीव्स अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो ये भी देखना है। देन हेल्पलेसनेस, राइट, हेल्पलेसनेस इज अनदर स्ट्रगल इन्फेंट इन आउटर वर्ल्ड। तो आफ्टर birth infants are in the hospital में the care of many like doctor nurse are there, but newborn baby are at home, there need to be a proper care. Sometimes the parents are not given proper care attentions, so that can be the child feel helplessness or newborn feel helplessness, which comes a psychological hazards in case of first for born children and then the later born children. Then attitudes of the parents, right? So attitudes of the parent change at the time of birth. तो attitudes कैसे हैं ना, प्रिफरेंस, हम समटाइम्स जेंडर प्रिफरेंस करते हैं, या कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि एक्सेसिव क्राइंग या डिफिकल्ट नर्चरमेंट, राइट। इस तरह की बहुत सारे बिलीव्स हमारी पेरेंट्स की, जब बच्चा पैदा होना चाहिए था तो गर्ल्स, हमें बॉयज चाहिए, तो इसी तरह एटीट्यूड चेंज हो जाती है उस हिसाब से, तो वो भी डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स एंड साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। देन फिजिकल, हर स्टेज में हम डेवलपमेंट में 3-4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये है ही है, ठीक है, हर स्टेज में। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट्स जो है, फिजिकल डेवलपमेंट्स आपको देखोगे यहाँ पे 3 months लाइक फर्स्ट इन्फेंट रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो ये नॉर्मल बेबी इज डबल इट्स बर्थ एंड वेट एंड 6 months, ठीक है, ये चीजें आपको दे दिया। इन 3 months में उनकी कितना हेड साइज है ना, ये सारे दे रखा है। दैट इज लाइक बोर्न व्हिच इज रिलेटिवली द चाइल्ड इज, आप हेड देखो, द बैक ऑफ हेड
about 3 months and larger than the in front of, है ना, uh, weight uh, weight is also rapid increase rapidly during the pregnancy. The end of the year, the brain has already reached 75% in adulthood. तो इसी तरह फिजिकल डेवलपमेंट्स आप देखोगे एंड ऑल्सो मैचुरेशंस क्या है? मैचुरेशंस जो होता है कि यूनिवर्सल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो बच्चों में ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है, तो वो मैचुरेशंस हैं उसको, वो डेवलपमेंट से अलग है। जो इस बच्चे इतने एज में वो बच्चों को बोलना चाहिए, चलना चाहिए, वर्क करना चाहिए, वो एक स्टेज है, ठीक है। देन साइको सोशल डेवलपमेंट, जो एरिक्सन्स की बहुत बड़ा थियोरीज हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट आप पढ़ना, उसको सर्च करना। तो इनिशियली हियर इज टॉकिंग अबाउट द जो इन्होंने बताया ईगो आइडेंटिटी, बच्चे द फर्स्ट जो डेवलपमेंटल स्टेज में, तो ईगो स्ट्रेंथ और ईगो इक्वालिटी, ठीक है। तो बच्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा ईगो का मतलब है, आपने देखा होगा जब 2 साल 1 साल क्रॉस कर जाता है, तो 2 साल की जो होते हैं बच्चों के अंदर ज्यादातर जिद्दी होता है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा चीज है, वो बहुत पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स, तो दैट इंडिकेट्स द ईगो स्ट्रेंथ और ईगो आइडेंटिटी। बट इस स्टेज में बेसिकली जो आप देखोगे बर्थ टू 1 ईयर एरिक्सन सेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ट्रस्ट किससे? जो फैमिलियर, जो केयर करेगा, है ना, जो केयर गिवर है उनको बहुत प्यार लाड पाड़ में मम्मी पापा जो मदर फादर जैसे करते हैं, प्यार करते हैं, तो ट्रस्ट डेवलप होती है। मिसट्रस्ट कहाँ होता है? जहाँ इनकंसिस्टेंसी देखते हैं केयर गिवर, समटाइम्स द चिल्ड्रन आर बाय टेकिंग केयर ऑफ द केयर गिवर, तो उसमें जो है इनकंसिस्टेंसी होती है। देन इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से रिजेक्शंस होती है, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट अमंग द चाइल्ड डेवलप होती है। तो एक ये चीज इन्होंने बताया था। Sir, the previous one you were saying then कि like the change in attitude also affects the development. How this happens? Like the child in the womb receive the messages. You are like in these terms you mean to say. नहीं, पेरेंट्स की जो क्या अर्ली डेवलपमेंट से या क्या बता रहे हो आप? नहीं जो आपने उसका बताया वॉर्म में जब होता है बच्चा, वो पेरेंट्स की जैसे कि बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे जगह पे वो एटीट्यूड्स होती है ना बच्चों की। हम लोग कभी कभी देखो उसी तरह हमें बच्चों को खाना खिलाते हैं, नर्चर करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो सारे इम्पैक्ट पड़ता है एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पेरेंट्स, फैमिली, कल्चरल प्रेशर्स, ठीक है। तो बच्चों के माँ उसी को महसूस करता है, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस महसूस करता है ना, वो सारे। okay, मतलब you mean to say the whole message child is getting in the womb only. यस, उस टाइम पे भी और बाहर में भी आके सीखता, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली जो आपका 0 इन्फेंसी पीरियड की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। देन अदर टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर लाइक अटैचमेंट कितना है बच्चों के साथ, स्माइलिंग, और बच्चे अगर इनकंसिस्टेंसी होती है तो अगर ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है तो एंजाइटी, ये जो है ना आगे चल के भी उनका लेटर स्टेज में वो डेवलपमेंट होती है। तो एंजाइटी कभी कभी हमें बच्चों को कहीं बाहर छोड़ के जाना पड़ता है, जहाँ सिंगल मदर है या सिंगल फादर है या both parents are working and children are in hand of the maids and other caregivers, so then the child lose the things, right, and sometimes they find the anxiety among themselves, right, so that is important. Then fear of stranger, बहुत सारे जो इन्फेंसी स्टेज में हमेशा जिनके साथ वो फैमिलियर है उन्हीं के पास जाएगा, बाकी लोगों के पास वो नहीं जाएगा, उनको डर लगता है, या फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, राइट। तो ये है साइको सोशल डेवलपमेंट गिवन बाय एरिक्सन्स, देन you get details about it. Then cognitive development,
राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर जीन पियाजे की थ्योरी है, आप पढ़ लेना। जीन पियाजे हैज गिवन द सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, राइट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज। ये सारे स्टेज हैं, आप देखोगे सेंसरी बर्थ टू 2 years, जो सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशन, ये स्टेजेस इन्होंने बताया था। तो खास करके जो बर्थ टू 2 years हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जहां बच्चे रिफ्लेक्स कर रहा है, सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी रिएक्शन 1 to 4 months, राइट, देन कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। तो इस तरह की जो मोटर स्टेज में, ठीक है ना, जहाँ चाइल्ड साइकोमोटर डेवलपमेंट्स हैं, तो ये काफी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप देखोगे रिफ्लेक्सेस, मतलब द चाइल्ड ट्राई टू सकिंग एंड लुकिंग, ठीक है, so that is important. Then primary circular reactions, basically the 4 months जब हो जाता है, the child work on action of his own when serve as a stimulus to which it is respond in the same actions. आप कुछ करोगे वो करेगा। तो जैसे अराउंड राउंड वी गो, आप ऐसे पीछे पीछे भागो, वो भी पीछे पीछे भागे। तो इस तरह की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एंटिसिपेट, जो मुझे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। द चिल्ड्रन बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड बिगिनिंग्स इंटेंशनली, रिपीट एक्शंस, ठीक है, यहाँ पे रिपीट एक्शंस इमिटेट करना, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशंस ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस, जहाँ पे कोऑर्डिनेशंस, डिमांड की ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी डिमांड करना है ऑब्जेक्ट की, कोऑर्डिनेट करना। देन टर्शियरी सर्कुलर्स, बेसिकली द चाइल्ड इज डूइंग ट्रायल एंड एरर, यहाँ पे ट्रायल एरर सीखता रहता है, कोई तोड़ता है खिलौना, जोड़ता है, इस तरह के। 12 months to 24 months. Then early representational thought, the child begin to develop symbols, represents and events of the object in the world, right? And in the final sensory and motor stage. Then इसके अलावा this is all about cognitive development and linguistic development. इसी तरह linguistic आप पढ़ोगे, यहाँ पे linguistic क्या बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो लैंग्वेज बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। तो इसमें फोनोलॉजी, सेमांटिक्स, ग्रामर, प्रैग्मेटिक्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा, जो लैंग्वेज कैसे कैसे सीख रहा है बच्चे, ठीक है। तो 1 से 2 साल जो बच्चे हैं फेमिलियर विथ, जैसे टीवी, दीदी, है ना, बनाना, नाना, राइट। सो सिमिलर काइंड ऑफ जो फोनोलॉजी है, दे ट्राई टू से। सिमिलरली सेमांटिक इसी तरह है। तो सेमांटिक में एग्जांपल्स दे कार, वेन, ठीक है। the 2-year child have a several prose words, ठीक है, vocabulary has developed, right. तो this kind of word semantic जो है words they learn it. Then grammar also, syntax and morphology, ये सब grammar भी यूज करते हैं। Then pragmatics जो है generally involves rules of appropriate and effective communication, and 3 skill involved here, like using of greetings and demand, changing language, okay, depending on this, then following the rules, running, staying on the topic. So ये language also develop here. Okay, now unit 4 के अंदर दूसरा है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। यूनिट 3 विल नॉट डिस्कस, ठीक है। यूनिट 1 2 इन्फेंसी हो गई। नाउ नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो आज हमने 2 पढ़ा, एक तो है प्रीनेटल डेवलपमेंट, एक है इन्फेंसी, 2 डेवलपमेंटल स्टेजेस, राइट। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नाउ क्वेश्चन टाइम। Sir, I just wanted to ask, can you explain helplessness in psychological hazard with an example maybe? हेल्पलेसनेस 2 तरह की होती है। आप कहाँ पे, ये प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? हाँ जी, ये आपने बताया था ना, हैजार्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, फिजिकल हैजार्ड एंड साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल में यू हैड मेंशन्ड helplessness as one of the psychological hazard.
हाँ यस, तो साइकोलॉजिकल हजर्ड्स जो है, हेल्पलेसनेस, यस, जो खास करके जो मदर्स हैं ना, मदर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हेल्पलेसनेस है, ठीक है, तो वो बच्चों की वो जो एंजाइटी है वो बच्चों की आ जाती है, ठीक है, मैंने कहा Page number 33, sir. 33। Yes, sir. मतलब उसमें लिखा तो है, but I am not able to understand what they are trying to say. यस 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 यस, 33 ना। Yes, sir. ये है हेल्पलेसनेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हेल्पलेसनेस इज अनदर स्ट्रगल फॉर द इन्फेंट लाइक एट द टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, ये तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ना, इन्फेंसी की बात कर रहे हैं हम, हेल्पलेसनेस, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आफ्टर जो बर्थ होता है उस टाइम पे हॉस्पिटल में तो केयर मिल जाता है डॉक्टर से, नर्स से, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी इज रिक्वायर्ड मोर अटेंशन, मोर केयर एट होम ऑल्सो, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास होता ही नहीं है कोई, ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चों को ध्यान देना, उसका सारे केयर करना, तो वो सारे प्रॉपर एक मदर कर नहीं पाता है, वो बेड पे रहती है, ठीक है, तो हेल्पलेसनेस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज में भी उस टाइम पे उसको प्रॉपर केयर नहीं करने की वजह से वो या टेम वो साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल में तो पूरा फैसिलिटी मिल जाता है, प्रॉपर चीजें मिल जाती है, लेकिन घर के अंदर वो केयर नहीं हो पाता, तो उससे हेल्पलेसनेस जो अदर फैमिली मेंबर की सपोर्ट होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। Okay. So, like, you mean to say, if only husband and wife are there, but let us say there are no grandparents who are available around, not much of maid help, so wo हाँ obviously they are, worked up with so much of work pressure in terms of. यस यस, आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने की बच्चों को डे केयर में बच्चे छोड़ के जाते हैं माँ बाप, है Correct, ना, sir. ठीक है, Okay, sir. Thank you. ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? सर सेंसरी मोटर स्टेज एक बार बता देते फिर से। क्या सी, कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज सर इन्फेंसी में 1 to 2 ईयर वाले में। सेंसरी मोटर, यस सर। सर जीन पियाजे की थ्योरी में जो है, अच्छा, जीन पियाजे, ओके ओके, जिसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। हाँ, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज जो 5 ऑर्गन से हम लोग जैसे सीखते हैं, सेंसरी मोटर है ना, बर्थ टू 2 ईयर, सेंसरी डेवलपमेंट जो है, सेंस एंड मोटर एबिलिटी जो बच्चों की होती है, जहाँ रिफ्लेक्सेस, जैसे कि आप बच्चे क्या करता है उस टाइम पे, जो 0 टू बर्थ टू 1 मंथ है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, जहाँ बॉटल जो दूध की बोतल है उसको सॉकिंग और लुकिंग हियर एंड देयर, ब्लिंकिंग, तो ये मोटर रिफ्लेक्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देन प्राइमरी, इसका जो है मोटर के अंदर ये सारे स्टेजेस दे रखा है, ठीक है, 1 to 4 मंथ्स, जैसे कि आपको बच्चे जो 1 से 4 महीने में, 1 मंथ to 4 मंथ्स, ठीक है, उसमें क्या होगा कि चाइल्ड है स्टार्ट की जो ऑन एक्शन, थोड़ा थोड़ा अपना एक्शन करने की कोशिश करते हैं, स्टिमुलेट रिजर्व करते हैं, तो आप कोई एक्शन रिपीट करोगे, जैसे आपने क्लैप किया वो भी क्लैप करेंगे आपको देखते हुए, आप थोड़ा सा टर्न अराउंड करोगे वो भी टर्न अराउंड करेंगे, तो इस तरह की रिफ्लेक्सेस यहाँ हो गया। देन सेकेंड सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 मंथ्स में रिपीटेड एक्शंस इन बिगर एनवायरमेंट, ठीक है, इंटेंशनली और रिपीटेड एक्शंस करेंगे, मोर फोकस ऑन टू द रिपीटेड एक्शंस, ठीक है, देन सर्कुलरी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस इज बेसिकली हियर द डिमांड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मेरे को वो चाहिए, या मोर
demand on the objects or response become more coordinated and complex. ठीक है. Then tertiary circular reaction जो 12 से 24 महीने में इस टाइम पे ट्रायल एंड एरर, कोई भी चीजों को तोड़ना, लगाना, जोड़ना, इस तरह के आप काम करेगा बच्चा. ठीक है. देन अर्ली जो रिप्रेजेंटल थॉट्स मीन्स यहाँ पे चाइल्ड बिगन टू डेवलप सिंबल टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इनटू वर्ल्ड फाइनरी ऑटोस्टेट. मतलब यहाँ पे अपना एक थॉट प्रोसेस है जहाँ वो कम्युनिकेट करना चाहेगा इन टर्म्स ऑफ सिंबल. उनके माइंड में इमेजेस बनना शुरू हो जाती है जो, ठीक है, उनकी फाइनल सोशल मैटर में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जहाँ वो इमेजिन कर सकता है. थॉट प्रोसेस में एक सिंबल्स बन जाती है चीजों के लिए. तो ये है. थैंक यू सर. एनीथिंग एल्स? सर आपकी Sir, नेक्स्ट क्लास one कब more लगेगी? thing I wanted to check with you. नेक्स्ट सैटरडे संडे. ओके सर, थैंक यू. Sir, आजकल, we have seen this a lot that parents will switch on the TV and leave it, so the child is busy. या phone पे दे दिया कुछ. तो मतलब at what age the actually child can see all these things and I mean, they know that okay, I'm watching TV. At what age? Like, I'm sure it is at a very early age, but if you can tell me approximately at what age they get to know. और देखो आज के टाइम पे छोटे बच्चे भी है, वो टीवी भी स्क्रीन चलाने मतलब सीख गया है. तो वो कोई नहीं, दिस इज ए इंफॉर्मेशन एज. एंड ये ऑल्सो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे एज नहीं है. तो आप जितना एक्सपोजर, देखो घर की एनवायरनमेंट हर जगह एक्सपोजर है, तो ऐसा कोई नहीं है. बट हाँ, दीज आर द थिंग्स ऑल्सो इम्पैक्ट. जैसे आप दो तरह की एडवांटेज है. आज के टाइम पे आप रोक भी नहीं सकते हो उनको, और इंफॉर्मेशन एज में अगर वो चीज़ों को क्रिएटिव कंटेंट क्या देख रहा है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. कौन सी चीज़ें देख रहा है, क्या चीज़ लर्न कर रहा है, वेदर इट इज अ लर्निंग पर्पस, वेदर इट इज एनी अदर पर्पस विच इज यूटिलाइज नॉन यूटिलाइज. तो बहुत सारे बच्चों की ऑब्वियसली सोशल मीडिया जो है या वीडी टीवी जो कार्टून्स देख रहे हैं, तो उसकी वजह से क्रिएटिविटी डेफिनेटली इम्पैक्ट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत लार्जली इम्पैक्ट होगा. और रिलेशनशिप में भी बहुत इम्पैक्ट होगा. अटैचमेंट कम होगी, जो हमारी रिलेशनशिप इवन बड़ों के अंदर में भी आ चुका है. तो ये चीज़ें काफ़ी बहुत चीज़ रहेगा. एफेक्शंस, जो एक अटैचमेंट, केयर, लव, वो थोड़ा कम हो जाएगी चीज़ों के अंदर. तो दीज आर द ऑल्सो साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो देयर. ठीक है. तो आजकल तो 1 साल की बच्चा भी टीवी मोबाइल फोन जहाँ मिल जाए, 2 साल 3 साल, है ना. तो है कि Okay. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है. बट आप ना दो तो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन अर्ली चाइल्डहुड, जैसे मैंने कहा, इन्फेंसी, एटलीस्ट इन्फेंसी मतलब 2 साल तक आप ना दो, उससे दूर रखो तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि इन्फेंसी पीरियड बहुत क्रूशियल है, और यही डेवलपमेंटल स्टेज है जहाँ आने वाले लार्ज जो उनकी लेटर पार्ट ऑफ स्टाइल डेवलपमेंटल स्टेजेस में बहुत हेल्पफुल होता है, इम्पैक्ट करता है. अगर वही चीज़ें अभी सारे करने लगे या जो गैप्स हैं, सो दैट कैन बी इम्पैक्ट इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. तो ये जो पीरियड काफ़ी क्रूशियल है, इन्फेंसी 2 साल, फिर 2 से लेके 6 साल, ये बहुत बड़ी क्रूशियल है. यही टाइम पे आप जैसे पेड़ को पौधा लगाते हैं ना, उसका पूरा नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत टाइम देने की ज़रूरत है इस टाइम पे. सर लाइक टुडेज वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स कि जैसे छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, मतलब कोई गीता गा रहा है, कोई म्यूजिक भी, इवन द स्मॉल बेबीज दे सिंग. सो दिस इज अ लाइक चेंज इन द एरा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न एज. यस, एडवांटेज भी है. वही तो कह रहा हूँ, कंटेंट क्या देख रहा है वो इम्पोर्टेंट है. व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट गेटिंग एक्सपोजर. Yeah. So important topic of this third unit would be hazards during infancy. And थर्ड यूनिट में हमने इन्फेंसी की बात पढ़ी है ना. तो इन्फेंसी में
इम्पोर्टेंट में इसमें साइकोसोशियल डेवलपमेंट हो गया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एरिक्सन की, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो एडिक्शन गई, मॉडल। हाँ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। अब हर चीज़ों में यही चीज़ आएगा, ठीक है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोसोशियल डेवलपमेंट, देन लिंग्विस्टिक। यहाँ पे लिंग्विस्टिक एडिशनल आ गई, लैंग्वेज क्या डेवलप होती है, माइलस्टोन क्या है, कि कौन सी एज में कितना बच्चा कौन सा वर्ड, 2 वर्ड 3, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। हजार्डस हजार्डस भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन टेक इट, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 3 3 4 4 5। तो दोनों जीन पियाजेट एंड एरिक्सन दोनों मॉडल हाँ जीन पियाजे, इस दोनों को याद इम्पोर्टेंट। कर लो, बहुत 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 इजी है। एक तो ट्रस्ट वर्सेस जी। मिसट्रस्ट बताया, साइकोसोशल, और एक वो बताया कि बाई सेंसरी मोटर स्टेज, जीन पियाजे, है ना। एक जीन पियाजे की पूरी डेवलपमेंटल मॉडल्स बना लेंगे तो उससे काफी आसान हो जाएगा हमें याद रखना। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जीन पियाजे में नहीं है ना? साइकोसोशियल, एरिक्सन। हाँ सर, एरिक्सन एरिक्सन। ओके ओके। और ये जो ईगो आइडेंटिटी है ना, ईगो आइडेंटिटी, ये बच्चों में रहता है टिल 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक रहेगा ईगो आइडेंटिटी। मतलब ये मेरा खिलौना है, मेरी पॉजिटिव है, मेरे को चाहिए पहले, ठीक है, कोई खिलौना। कब तक रहता है ये सर? 5 साल, 6 साल, 7 साल। अर्ली चाइल्डहुड जैसे खास करके इन्फेंसी 2 से लेके 2 साल से लेके 6 साल, उसमें ज्यादा दिखाई देगा प्रोमिनेंट बच्चे के अंदर ईगो, जो स्ट्रेंथ है, ईगो आइडेंटिटी, ईगो सेंट्रिज्म इसको बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। Sir, like we spoke about attachment, right? Other type of social behavior में हमने अटैचमेंट के बारे में पढ़ा, तो मतलब उसमें जैसे लिखा हुआ था कि the infant can recognize their caretaker and his faces and all those kind of things. So let us assume अगर मतलब probably that is the reason why, if let us say a children has been raised more by grandparents, they are more attached with them as compared to, let us say, parents if they are going out for work and all those kind of things. Basically it's not the relation, it is about with whom they are getting the more exposure. Correct. Yes, getting the more exposure. Yes. Okay sir. Yes. Any other doubt? Sir, I have a point, sir. What you had covered, sir, the ego quality or the ego strength, sir, that continues to develop up to the age of like 5 years, or because after that super ego develops in the child, or it continues to develop throughout the life cycle. Not throughout, ज़्यादा से ज़्यादा ये एडोलेसेंट तक रहता है, इसके बाद मैच्योरिटी जैसे से आ जाता है फिर ईगो सेंट्रिज्म नहीं होती, ठीक है, जो ये Okay, खास sir. करके 10-12 मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा ये जो 2 साल से 6 साल है ना, इसमें ज्यादा, कि उसको समझ में नहीं आता है, हर चीजें कहेगा मेरा है, मैं चाहिए, मेरे को पहले दो। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपने अगर उसका रैपर खोल दिया, वो वहीं पे लट जाएगा, क्यों खोला आपने, उसको जीत पकड़ लेगा बैठ के। और सर इसमें एक लाइन दी है, if the stage is managed poorly, the person will emerge with a sense of inadequacy. यस, यही तो है ना, अगर आप इसको हैंडल नहीं करेंगे, इसीलिए फ्रॉइड ने भी तो बताया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, हाँ जी। फ्रॉइड की थ्योरी जब आप पढ़ोगे ऐसे ही है। तो अगर पुअरली नहीं मैनेज करेंगे इस स्टेज को, तो फिर लेटेस्ट स्टेज में उसी तरह डेवलपमेंटल जो डेफिशिएंसी है
किसी की आपने देखा होगा सेल्फ एक्सटीम कम है, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या इमेज है ना, वो सारी चीजें उसी वजह से डेवलप हो। Okay, sir. लेकिन इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इसीलिए साइकोलॉजी हमेशा ये चीजों को रिकॉग्नाइज करके इस स्टेज में कहीं पे भी आप काउंसलिंग करके देन प्रोग्रामिंग करके उसको चेंज करा सकते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो हम उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सर एडोलेसेंस एज में ईगो ज्यादा नहीं आ जाता है? मतलब इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप मोर। एडोलेसेंट में नहीं आता है, एडोलेसेंट में और तरह की होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होती है। ओके। आई थिंक मोर देन ईगो एग्रेशन बहुत होता है एडोलसेंट में। एडोलेसेंट में होती है, लेकिन एग्रेशन बहुत उसमें होता है। कॉम्पिटिशंस ज्यादा भावना रहती है। इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ एनीबॉडी। यस, इफ इट्स अ मैटर ऑफ पेरेंट्स, दे वांट अ फ्री लाइफ। यस, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। आज की जो आपने क्लास ली है ना, बाकी जितनी भी हमने क्लास ली है, मुझे बहुत बेहतर आपने हमें समझाया है और हमारे काफ़ी सारे डाउट्स जो क्लियर हो गए। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छे से पढ़ाया हमें। चलिए, बहुत अच्छा, आपको समझ में आया? जी सर, बहुत अच्छे समझाया आपने। अभी तक तो किसी टीचर से इतना अच्छे समझा नहीं हमें, मतलब उन्होंने समझाया नहीं, इतना टाइम भी नहीं दिया। कुछ टीचर आए जैसे कि वो 2 घंटा बोल के आधे घंटे 35 मिनट पढ़ा के चले गए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हाँ इतना टाइम बोल कर भी वो 1 नहीं, घंटा भी उन्होंने नहीं आप पढ़ाया। जी सर। ओके, वो 45 मिनट्स तक तो बोलेंगे, 45 मिनट्स 30 मिनट्स, जो भी ओवरव्यू एक देके उसके बाद आप जो क्वेश्चन हो, जितना क्वेश्चन आंसर होगा उतना अच्छा है। ठीक है। हाँ जी सर। जैसे जैसे आपने 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया अपनी तरफ से, फिर हमारी क्वेरीज आई, क्योंकि आप जैसे अब मैं टीचर ही तो हमारी हेल्प करते हैं सर, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग है तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं हमारे। एक्सक्यूज मी सर। अब मेरे को भी तो देखो, सुबह सुबह से कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ। जी सर, मैं देख पा रही हूँ आपका शेड्यूल 10 से 2 बजे, 10 से 12 बजे भी आपने क्लास ली तो है। मेरे को ब्रेक नहीं मिली है। हाँ सर, सर आप कंटिन्यूअस बोलना भी पड़ेगा। हमें हेल्प करती है ना, आप जैसे टीचर की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। ओके, थैंक यू। Sir, I want to ask something. एक्सक्यूज मी सर। जी, सर प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल इश्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो जो लेडी को ट्रॉमा सहन करना पड़ता है उसका बॉडी सब चीज़ों से, तो वो बेबी के अंदर भी पास थ्रू होते हैं। यस, ऑब्वियसली वो हार्मोनल चेंजेस इतना नहीं। म्यूट कर लीजिए। पहले म्यूट कर लीजिए, पूछ लिया। ओके, जो हार्मोनल चेंजेस की बात कर रहे हो वो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो गई लाइफ में, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन हो रही है, या मेजर ऐसे इवेंट्स हैं लाइफ में जो वो चीज़ें इम्पैक्ट, मान लो कोई डेथ हो गया घर पे या कुछ और ऑल ऑफ ए सडन, है ना, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कुछ एक नॉर्मल है वो चलेगा। ठीक है। सर तो कोई तरीका है जिनसे वो ट्रॉमास को अपन हेल्प कर सकें बेबीज को उसका ब्रिंगिंग के अंदर? काउंसलिंग है ना, वही काउंसलिंग करना है, हमें समझना है रियलिटी को। मान लो किसी की नियर बाय डेथ हो गया, अब क्या करें, उस चीज़ों को उससे ओवरकम करना है, क्योंकि बेबी को, इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा दूर रखते हैं इस सब चीज़ों से, थोड़ा कहते हैं आप इसमें मतलब हो, तो वो फर्क पड़ता है। तो चीज़ें को हम थोड़ा सा, ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेस जो जो इमोशन जो मदर को होगा वो सारी चीज़ें बच्चों को ट्रांसफर होती है।
ठीक है। Sir, we are having this class with June 23, whereas I am admission of January 24. तो सर उनका कोर्स तो कुछ पहले कवर हो गया होगा ना? नहीं, कोई कवर है, सेम ही है सारे। सेम है, ओके। सर एक बात पूछनी थी, जैसे आपने आपका ये ब्लॉक पूरा कंप्लीट करवाया, यूनिट ऑलमोस्ट 3 यूनिट कंप्लीट करवा दिए, जैसे हमारा अगर क्लास हो पाती वो तो सर का एक जनरल रीजन था विच कैन हैपन विद एनीबॉडी, तो जो जैसे कल का हम लोगों का टाइम शेड्यूल था, क्या हम इसको कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं इन दी कमिंग वीक विद यू? हाँ, वो तो एसी में कवर कर लेंगे। कल जब नेक्स्ट क्लास होगा, जहाँ पे लास्ट क्लास मान लो जिस दिन हमारी फिजिकल क्लास हो रही है, उस दिन कवर कर लेंगे सारे। Thank you so much, sir, for your so much precious time and understanding, making us understand all the topics which you have covered it. Thank you so much. Right. Sir, if we could not attend the physical class, is there deduction or नहीं, anything like that? कुछ नहीं है। थियोरी क्लास कंपलसरी नहीं है आपका। जो प्रैक्टिकल इज 100% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। सर प्रैक्टिकल से कुछ आप आइडिया दे सकते हैं क्या एग्जैक्टली होता है प्रैक्टिकल क्लासेस में? प्रैक्टिकल क्लास में बताया जाता है जैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या है उसका टेस्ट, क्या है, कैसे करेंगे, और खुद करके भी देखेंगे वहीं पे। सर वो कब होगा? डेट शीट है प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होंगे। वो कब होगा कितने सर? दिन बाद होगा ये भी बता दीजिए, बहुत हेल्प मई में मंथ ऑफ मई। हाँ, 18-19 ऐसे हो सकता है, जो संडे पड़ेगा, संडे करेंगे। पर सर जून में तो हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे? हाँ, एग्जाम से पहले। और प्रैक्टिकल एग्जाम? सब तो ये बता रहे एग्जाम बाद में एग्जाम बाद में होगा। हाँ, एग्जाम बाद में होगा। ओके। वो प्रैक्टिकल काउंसलिंग है। सर एक्चुअली मेरा कंसर्न भी यही था, लाइक साइकोलॉजी में इट्स अ ह्यूज वेरी वास्ट सिलेबस, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में जैसे इग्नू ये करिकुलम करवा रहा है, तो हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस, लाइक हम किस एरियाज में इसको कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स, और इतना क्या प्रैक्टिकल है इसके अंदर? इग्नू में इतना मटेरियल दिया है, अगर आप इसको सीरियसली पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, पहले इसको अगर सीरियसली आपने पढ़ लिया, लर्न कर लिया, ये बहुत है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको कंप्लीट कर लिया, देन यू कैन स्टडी ऑन एनी स्पेसिफिक एरिया, स्टडी कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत है चीज़ें हैं। तो पहले गो फॉर स्पेसिफिक 1 by 1 एंड रेगुलर स्टूडेंट, और आप कह रहे हो ये इट इज डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग। ठीक है, रेगुलर क्लास में क्या होता है, इट इज मोर ऑफ लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें एक ये स्कोप है एंड मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग ना। तो देखो ऐसे इट इज नॉट अबाउट क्लिनिकल काउंसलिंग और अभी इट इज अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, आई नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, राइट। इट इज नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, जहाँ आप काम करते हो वो सेटिंग में, बट एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरवेंशंस और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पे डील करना है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन देना है चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, लेकिन जब क्लिनिकल पढ़ते हैं तो हम क्लिनिकल पेशेंट्स की बात करते हैं, जब हॉबी की बात करते हैं तो हॉबी में अलग हो जाता है। तो नेचर ऑफ, लेकिन इट इज रिमेन सेम, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आर डिफरेंट, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, हम सेम, अगर मैंने को किसी को ऑर्गेनाइजेशंस में काउंसलिंग करना है मोटिवेशन के लिए, तो वहाँ करनी है। काउंसलिंग में भी यही मोटिवेशन काउंसलिंग करनी है ना। तो काउंसलिंग और जो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कह लो या कहीं पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये तो हर जगह सेम ही है। एम्प्लॉय बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पेशेंट की बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, और जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो स्टूडेंट की बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा है। ठीक है सर, सब सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है क्या? सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है? एवरी सब्जेक्ट इज ए प्रैक्टिकल यार,
सब सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। आप इसका एप्लीकेशन है इजी टू अंडरस्टैंड बट प्रैक्टिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए आपको इन डेप्थ पढ़ना, बार बार, सबसे इम्पोर्टेंट है चीज, आप बार बार पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, और जितना पढ़ोगे जितना समझोगे उतना आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पहले बढ़ाना है। फिर धीरे धीरे देन यू गो टू इनटू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसका देखोगे। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करोगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करूँ देन नॉलेज आएगा, ये नहीं। पहले साइकोलॉजी में थियोरिटिकल बेस्ड नॉलेज बढ़ानी है, कौन सा चीजें क्या है, क्या इम्प्लीकेशन, ठीक है, देन कम टू प्रैक्टिकल। सर थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर देंगे, लाइक कहाँ कहाँ हम इसको पढ़ के मतलब आगे इसको थोड़ा सा पहले तो apply कर यही सकते सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मिला है आपको उतना ही पढ़ो, पहले उसको अच्छे से एग्जाम दो, उसको समझो। लाइफ स्पैन साइकोलॉजी क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो, देन सोशल साइकोलॉजी हो गया, है ना, देन ये सब चीज़ें हो गई, पहले इतना ही पढ़ लो बहुत है। इसके अलावा अगर और पढ़ना है, जैसे साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें हैं, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ना है Sir, आप। we had one doubt. If we talk about clinical psychology, अगर हम वो अपना मेन सब्जेक्ट बनाते हैं तो मतलब इन टर्म्स ऑफ जॉब, क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आप करते हैं तो आप हॉस्पिटल्स में ही प्लेसमेंट पाते हैं और एनी अदर प्लेसेस आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर? आप कहीं We can apply for license. आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी सिर्फ आप इंडिया में अभी नॉर्मल फ्लेचर भी चेंज होगा आने वाले दिनों में, एंड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के हिसाब से। फिलहाल तो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी को क्लिनिकल साइकोलॉजी मानते हैं, और सारे साइकोलॉजिस्ट ही हैं। ठीक है, एमए साइकोलॉजी सब एक जैसे हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। लाइसेंस की बात जो है ये एक मोनोपोली है, एक मीथ भी है। ठीक है, जो आरसीआई है वो सिर्फ रिहैबिलिटेशन के लिए लाइसेंस देता है, जो रिहैबिलिटेशन एरिया में काम कर रहा है तो। और क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी वो लाइसेंस देता है, जो एमफिल किया है। ये दोनों चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, जो लाइसेंस होती है। जो सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है, हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहा है, रिहैबिलिटेशन में। जिसको रिहैबिलिटेशन में काम नहीं करना है, सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम करना है। मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आप काम कर रहे हो। सीवियर मेंटल हेल्थनेस दो कैटेगरी है, एक है मेंटल हेल्थ और एक सीवियर मेंटल हेल्थ, जहाँ रिहैबिलिटेशन की जरूरत है जिस पेशेंट को। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन की जरूरत नहीं है तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो, एज ए एमए लेवल इज सफिशिएंट। ठीक है, जब रिहैबिलिटेशन की जरूरत है पेशेंट को, ठीक है, तब आप एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का रोल आता है, या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, जहाँ लाइसेंस की बात होती है। ठीक है, अदरवाइज मास्टर लेवल इज सफिशिएंट फॉर इफ इट इज नॉट रिहैबिलिटेशन। So even for own clinic चलाने के लिए तो आपके लिए रिहैबिलिटेशन नहीं है ना, मैं क्या बोला आपको, अगर आपको रिहैबिलिटेशन नहीं है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जब आप रिहैबिलिटेशन, अगर पेशेंट को इंटेंसिव केयर चाहिए, रिहैबिलिटेशन किसको होता है, जो सीवियर होती है, जिसका कोई Yes, sir. सेंस नहीं है। ठीक है, तो अब लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। Okay. तो आने वाले टाइम में क्या होगा अप्रोक्सीमेटली, लाइक कुछ आइडिया है, लाइक एमफिल? आने वाले दिनों में साइकोलॉजी, जो बीए साइकोलॉजी विल बी द 5 ईयर कोर्स। ठीक है, 5 ईयर कोर्स? हाँ, 5 साल का कोर्स होगा, जिसमें बीए साइकोलॉजी और एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो जाएगा। जिन लोगों ने मतलब मास्टर्स किया इग्नू से, फिर मतलब वो क्या कर सकते हैं? एमफिल नहीं वही होगा तो बीए साइकोलॉजी और एमए साइकोलॉजी, शायद ऐसे ही दो कॉम्बिनेशन बनेगा। और दूसरा कि लाइसेंस की बात तो है, पता नहीं अभी। ये जो है मेंटल हेल्थ सारे चीज़ें जाएगा फैमिली वेलफेयर, एक कमीशंस बनने वाला है। ठीक है, नेशनल कमीशंस, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर। तो वो शायद रेगुलेट करे, इसी में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्रोवाइड करे सबको। ओके सर।
सर जिन्होंने बीए हिंदी में हिंदी मोड में पढ़ा है और अभी जो एमए में इंग्लिश मीडियम है, ये सब इंग्लिश मोड में है, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो कोई बुक वगैरह या फिर कहाँ से कैसे क्या करें सर? हिंदी मीडियम तो बुक है नहीं, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। सर कोई ऐप वगैरह ऐसा सजेशन कोई